A very good morning to my lovely Patans. So welcome back after your EV exams. I hope you all have done a great job in your exams. So today we'll do the recap of chapter 4 starting Windows 10, as we were doing this chapter only before your exams. So today we'll do the recap of it and we'll take your doubts, any query, whatever you have. So today we'll discuss the queries. After that, in the next class we'll do its question answers. So now let's start the recap of chapter 4. So this is your chapter 4 starting Windows 10. So as you all know that Windows 10 is the latest version of Microsoft Windows operating system. Windows 10 बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, which is developed by Microsoft. Okay, so the most advantage of Windows 10 is what? Windows 10 एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप कंप्यूटर्स पे और टैबलेट्स पे भी आप इसको ईज़िली रन कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ द ओनली operating system Windows 10 which can run on your desktop computer, laptop computers and on tablets. Okay, so Windows 10 startup screen, this is how your startup screen will appear. Okay, so if first time you are using the Windows 10, you have to sign in. आपको account create करना होगा and after that you have to set the password while creating the account. और उसके बाद आप जब यहाँ पे आपके पास आएगा पासवर्ड, वो लेगा आपसे, and when you will type the password and press the enter key or click on this arrow, then you will come to the first screen of your computer. This is the first screen which will appear on your computer or on your laptop, and the first screen which appears after you sign in, that is called desktop. Okay, so it is the main workspace. ये आपका सबसे मेन वर्क स्पेस होता है, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर आपका हम कहाँ से ओपन करते हैं, डेस्कटॉप से ही ओपन कर सकते हैं. सो कंपोनेंट्स ऑफ डेस्कटॉप के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, हेयर इज़ योर स्टार्ट बटन. ओके, when you will click on your start button, then your start menu will appear. See, this is your start menu. ओके, और इसको हम विंडो आइकन भी बोलते हैं. सो ऑन द लेफ्ट साइड, दिस इज़ द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ डेस्कटॉप इज़ कॉल्ड टास्क बार. ओके, सो आपका स्टार्ट बटन और विंडो आइकन कहाँ होता है? ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर टास्क बार. ओके, so when we will click on it, your start menu will open. This is how your start menu will appear. After that you can see here this search box, और इसको हम कॉर्टना बॉक्स भी बोलते हैं. अगर आपको कोई भी फाइल, कोई भी डॉक्यूमेंट सर्च करना है, you have to type the name here using the keyboard and you will get a list here. Okay, then task view icon, this is your task view icon. ओके, टास्क व्यू आइकन हम किस लिए यूज़ करते हैं? टू ऐड मल्टीपल डेस्कटॉप्स. अगर हमें एक ही डेस्कटॉप पे मल्टीपल डेस्कटॉप ऐड ऑन करने हैं, वी कैन डू दैट. यू कैन सी हेयर आई एम क्लिकिंग ऑन इट, टास्क व्यू बटन. नाउ यू कैन सी हेयर प्लस साइन एंड न्यू डेस्कटॉप. तो जैसे ही आप इस पे न्यू डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, देखो डेस्कटॉप 1, डेस्कटॉप 2, अब हमारे पास 2 डेस्कटॉप आ गए. तो आप इसमें क्या करते हैं, हर एक डेस्कटॉप पे आप एक अलग प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं और उस पर ईज़िली वर्क कर सकते हैं. ओके, अगर आपको क्लोज़ करना है तो क्लिक ऑन दिस क्रॉस और वो क्लोज़ हो जाएगा.
To get back, click on the task view button again and it will go away. Okay. Next is Internet Explorer or Microsoft Edge icon. This is the Microsoft Edge icon. Okay. The taskbar contains shortcuts to applications. तो टास्क बार क्या करता है, आपके जो भी एप्लीकेशन आप मोस्टली यूज़ करते हैं आप उनको टास्क बार पे प्लेस कर सकते हैं. लाइक यू कैन सी हेयर पावर पॉइंट एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, टक्स पेंट. ओके. देन देयर इज़ एन आइकन ऑफ फाइल एक्सप्लोरर which allows us to access all your files. This is the file explorer icon. So when you will click on it, just wait, you can have access to all the files which are there in your computer. तो फाइल एक्सप्लोरर से आप सारी फाइल्स, सारे डॉक्यूमेंट्स, वट एवर यू हैव इन योर कंप्यूटर, इन योर लैपटॉप, आप उन सबको एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं. ओके. फाइंड आउट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं. So this is File Explorer. Then after that we have Windows Store. This is the Windows Store icon. So from here we can install apps and games. So जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे you will see, I will maximize it so that you can see clearly. So from here you can download any app or any gaming software, like it is home now, and here you can see the gaming option. So you can click on gaming. Now you will see here different games. Okay. So you can download these games from the Windows Store. Okay. So one more thing, जब भी आप कोई प्रोग्राम, कोई फाइल आप ओपन करते हो वो हमेशा आपको टास्क बार पे नज़र आएगा. ओके. एंड यू कैन ईजिली स्विच बिटवीन प्रोग्राम्स बाय सेलेक्टिंग दैम ऑन द टास्क बार. ओके. So on the right side of the taskbar we have the notification area. Here is the notification area. इधर आप देख सकते हैं it is written 4, means 4 updates are there, 4 notification are there. So when we click on it, see, this will update us, give us the messages. Okay. And you can see the internet connection, the volume symbol and the battery. If you are using the laptop, then it will show you the battery status of your laptop. Now start button. I told you this is your start button. Click on the start button. You have the list of programs here. तो आप कोई भी ओपन कर सकते हैं अपना प्रोग्राम, जो भी आप चाहें. स्क्रॉल डाउन करना है आपने. सपोज़ आपको टक्स पेंट ओपन करना है, आप अल्फ़ाबेट टी तक जाएं. यू कैन सी हेयर टक्स पेंट. क्लिक ऑन द डाउन एरो एंड यू कैन क्लिक ऑन टक्स पेंट फुल स्क्रीन और टक्स पेंट विंडो, और वो आपका ओपन हो जाएगा. ओके. सो दिस इज़ द लेफ्ट साइड ऑफ योर start button. On the right side you can see life at a glance. So this life at a glance is a collection of apps like calendar, mail, Microsoft Edge, photos, weather, okay, Google Chrome. So this is the collection of apps. And in the next section, play and explore, it has items like music, movies, videos, okay, Xbox app. So there are also options of file explorer. Here you can see this is documents.
then pictures, settings, this is power, in which we have the restart and shutdown options. Okay, and all apps option, where we have the full list of applications which are listed in alphabetical order. Okay, now opening application. अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन ओपन करनी है तो आप कैसे करोगे? फर्स्ट what you will do, click on the start button, select all apps option, then scroll down and move to the alphabet from where you want to open the application. Okay, like we go to window accessories and we'll open the paint. So click on the drop down arrow, then click on paint. So our paint window will appear here. So this is the paint window. Okay, now what are icons? Icons is used to represent any file, folder or application. अब जो आपकी फर्स्ट स्क्रीन आती है आफ्टर साइनिंग इन, वो क्या होती है? उसको हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप. ठीक है, ये आपकी क्या है? डेस्कटॉप स्क्रीन है. तो डेस्कटॉप पे ये जो आप स्मॉल पिक्चर्स देख रहे हैं, ये क्या है? आइकन्स. व्हाट वी कॉल देम? आइकन्स. तो आइकन किसी फाइल का भी हो सकता है, किसी फोल्डर का भी हो सकता है और किसी भी एप्लीकेशन का हो सकता है. लाइक यू कैन सी हियर, see this is the folder like पठानिया वर्ल्ड कैंपस. दिस इज़ ऑल्सो अ फोल्डर ऑफ जीके. ये जो आपको येलो येलो नज़र आ रहे हैं, दीज आर फोल्डर्स. ओके, अनु, TLS, शौर्य, दीज आर द फोल्डर्स. एंड दिस इज़ फाइल. ये क्या है? वर्ड फाइल्स हैं. चैप्टर 7, चैप्टर 4. एंड नाउ एप्लीकेशन लाइक टक्स पेंट. ओके, ये मीडिया प्लेयर, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, Zoom. So these are icons of application or programs. Now आप किसी भी आइकन को सिलेक्ट या डीसिलेक्ट कैसे करोगे? तो कोई भी आइकन अगर आपको सिलेक्ट करना है, आप माउस पॉइंटर उस आइकन पे लेके जाओगे एंड जस्ट प्रेस द लेफ्ट माउस बटन वन टाइम. देखो, नाउ ये आपको अलग से नज़र आ रहा है एक बॉक्स के अंदर. सो इट मीन्स इट इज़ सिलेक्टेड. आपको सिर्फ एक बार प्रेस करना है लेफ़्ट माउस बटन और वो सिलेक्ट हो जाएगा. ओके, नाउ अगर इसको डीसिलेक्ट करना है, व्हाट यू विल डू, टेक द माउस पॉइंटर, दिस स्मॉल एरो इज़ योर माउस पॉइंटर, टेक दिस अवे फ्रॉम दैट एंड क्लिक वंस. आप देख सकते हैं वो बॉक्स हट गया यहाँ से. इट मीन्स ये डीसिलेक्ट हो गया है. ओके, now sorting icons. Sorting means arranging icons in a proper order on your desktop. Sorting means arrange करना. ओके, तो अगर हम चाहते हैं अपने आइकन्स को अरेंज करना डेस्कटॉप पे, so we can do that also, and we can arrange the items or icons by their name, size, item type and date modified. So what you will do, right click anywhere on the blank area of desktop. आपको right click करना है. right click means you have to press the right mouse button. Now here you can see the option of sort by. sort by पे आप क्लिक करेंगे. Now you can see 4 options: name, size, item type, date modified. ठीक है. Now see here, आइकन्स को ध्यान से देखिए. मैं आप अलग अलग क्लिक करूँगी. लाइक फर्स्ट आई विल क्लिक ऑन नेम. तो आप देखना क्या चेंजेस होते हैं. सी, नेम के अकॉर्डिंग आपके आइकन्स अरेंज हो गए. नाउ इफ़ आई विल क्लिक ऑन द साइज़, साइज़ के अकॉर्डिंग आपका आइकन्स जो हैं वो अरेंज हो गए. तो अगर आप माउस पॉइंटर को लेके जाएंगे किसी भी आइकन पे, तो आप देख सकते हैं इसका साइज़. यहाँ पे साइज़ इज़ 94.2 KB. KB इज़ किलोबाइट. तो आपके कंप्यूटर में कोई भी डाटा, कोई भी चीज़ आप जब साइज़ वगैरह मेजर करते हो, वो बाइट्स में होता है. बाइट्स, किलोबाइट्स,
गीगाबाइट्स, मेगाबाइट, टेराबाइट्स, लाइक दैट। तो इसका साइज़ क्या है 94.2 किलोबाइट्स। अब नीचे हम आएंगे, इसका साइज़ क्या है 41.1 किलोबाइट्स। तो कम होता जा रहा है, मीन्स दे आर अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। 17.1 KB, 16.3 KB. Okay, now again right click on the blank area of desktop, click on sort by option, now click on item type. Now notice the changes in the icons. देखो फिर से चेंज हो गए, तो जिस तरह के आइटम्स हैं अकॉर्डिंगली वो अरेंज हो गए हैं। Now again right click on the blank area of desktop, click on sort by option, now click on डेट मॉडिफाइड। डेट मॉडिफाइड मीन्स जो भी लास्ट आपने लेटेस्ट कोई भी चेंजेस किए थे किसी भी फाइल में, फोल्डर में, तो अकॉर्डिंगली आपके आइकन्स जो हैं अरेंज हो जाएंगे। नाउ नोटिस द चेंज, देखो हो गए। सो दिस इज सॉर्टिंग आइकन्स। नाउ शो एंड हाइड द आइकन्स। शो मीन्स दिखाना, ठीक है, एंड हाइड मीन्स छुपाना। तो हम अपने आइकन्स को जो आपको अभी डेस्कटॉप पे नज़र आ रहे हैं इनको हम देख भी सकते हैं, और अगर हम चाहते हैं इनको हम हाइड कर दें, छुपा दें, तो हम वो भी कर सकते हैं। सो कैसे करेंगे? राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ डेस्कटॉप, दिस पॉपअप मेन्यू विल अपीयर। ओके, नाउ क्लिक ऑन द व्यू ऑप्शन हेयर। व्यू ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं शो डेस्कटॉप आइकन्स। शो डेस्कटॉप आइकन्स के सामने टिक लगा हुआ है। अगर ये टिक हट जाएगा तो आपके आइकन्स जो हैं वो हाइड हो जाएंगे, छिप जाएंगे। सो हम इस पर क्लिक करते हैं। सी, अब आपके सारे आइकन्स हाइड हो गए ना, छिप गए हैं सारे। सो अब हम दोबारा राइट क्लिक करेंगे ऑन द ब्लैंक एरिया। ब्लैंक एरिया मीन्स खाली एरिया जहाँ पे कुछ भी नहीं है डेस्कटॉप पे। अगेन क्लिक ऑन द व्यू ऑप्शन और हम दोबारा शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करेंगे। देखो अब आप देख सकते हैं यहाँ से टिक हट गया है ना, इसीलिए वो हाइड हो गए हैं। नाउ सी, हमारे आइकन्स वापस आ गए हैं। नाउ चेंजिंग द साइज़ ऑफ डेस्कटॉप आइकन्स। आप इन डेस्कटॉप आइकन्स का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? राइट क्लिक, क्लिक ऑन द व्यू ऑप्शन। आपके पास यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं ऑप्शन लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन। अभी स्मॉल के सामने ब्लैक डॉट है तो ये मीन्स स्मॉल साइज़ है। अगर हम मीडियम पे क्लिक करते हैं, जस्ट नोटिस द चेंज, देखो साइज़ बड़ा हो गया ना पहले से। नाउ अगेन क्लिक, राइट क्लिक, क्लिक ऑन द व्यू ऑप्शन एंड नाउ विल क्लिक ऑन द लार्ज आइकन्स। सी, ये आपका लार्ज साइज़ है आइकन्स का। सो मोस्टली हम प्रेफर करते हैं कि स्मॉल साइज़ ही रखें ताकि आपका डेस्कटॉप का जो एरिया है वो ज़्यादा कवर ना हो। सो हम दोबारा इसको स्मॉल आइकन्स पे कर देते हैं। ओके, नाउ सम इम्पॉर्टेंट आइकन्स ऑफ योर डेस्कटॉप। दिस इज़ योर रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन हमने थर्ड चैप्टर में भी किया था। रिसाइकिल बिन क्या होता है? इट्स अ डस्टबिन फॉर योर कंप्यूटर। तो अगर आपको कोई भी फ़ाइल डिलीट करनी है, कोई भी फ़ाइल, फोल्डर, एप्लीकेशन, तो वो सारी कहाँ जाती हैं? रिसाइकिल बिन में। ओके, एंड इट विल बी रिमेन देयर जब तक कि आप रिसाइकिल बिन को खाली नहीं करेंगे। ओके, देन वी हैव फोल्डर्स। फोल्डर्स लाइक दिस। फोल्डर्स में क्या होती हैं? फाइल्स होती हैं। ओके, सो यू कैन कीप फोल्डर्स, फाइल्स ऑन डेस्कटॉप। हम डेस्कटॉप पे इन पे रख सकते हैं सो दैट दे कैन बी ईजिली एक्सेस्ड, ताकि हम उन्हें ईजिली एक्सेस कर सकें, देख सकें, ओपन कर सकें। देन वी हैव दिस पीसी आइकन। इट इज़ यूज्ड टू हैव एक्सेस टू ऑल द ड्राइव्स, फोल्डर्स एंड फाइल्स। तो दिस पीसी आइकन से हम सारी फाइल्स, जितने भी ड्राइव्स होते हैं, फोल्डर्स, फाइल्स होते हैं, उन सबको हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नाउ विंडो 10 लाइव टाइल्स। So Windows 10 Live Tiles are interactive apps which uses internet
टू ब्रिंग लाइव अपडेट्स। तो जो लाइव टाइल्स होती हैं वो क्या करती हैं, लाइक अभी हमने स्टार्ट बटन पे जब क्लिक किया था, सी इनको हम बोलते हैं टाइल्स, विंडो 10 लाइव टाइल्स। तो लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज़ है, तो ये लाइव टाइल्स क्या करती हैं, आपका इंटरनेट यूज़ करती हैं और हमें लाइव अपडेट्स मीन्स बिल्कुल करंट अभी जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होगी, अगर हम न्यूज़ वाली टाइल यूज़ करते हैं तो न्यूज़ ऐप में क्या होगा, हमें लेटेस्ट न्यूज़ मिलेंगी, ओके, इंटरनेशनल और नेशनल। देन वी हैव मेल ऐप। मेल ऐप इज़ हेयर। मेल ऐप के लिए आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। कैलेंडर इज़ हेयर। कैलेंडर आपको शो करता है डेट, ओके, तो इसमें आप अपने इवेंट्स भी मैनेज कर सकते हैं। वेदर टाइल, दिस इज़ योर वेदर टाइल। इट विल अपडेट यू अबाउट द वेदर फोरकास्ट। जो भी वेदर फोरकास्ट होगा उसके लिए अपडेट करेगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा। सो लास्ट टाइम हमने इसमें देखा था रोहतक का हमने डाला था, देखो अभी भी रोहतक का है, तो इसमें सारा दे रखा है। आज क्या है, सैटरडे 19। सो अकॉर्डिंगली ये हमें वेदर दिखा रहा है कि कल कैसा होगा, परसों कैसा होगा, अकॉर्डिंग टू द डेट, ओके। देन वी हैव पीपल टाइल। पीपल टाइल इज़ यूज टू ऐड द कॉन्टैक्ट्स। नाउ पिनिंग टाइल्स टू स्टार्ट। पिनिंग टाइल्स टू स्टार्ट मीन्स ये जैसे हमने टाइल्स यहाँ पे पिन कर रखी हैं, ये हम कैसे करते हैं, लाइक हमें टक्स पेंट पिन करना है तो राइट क्लिक कीजिए, यू विल हैव द ऑप्शन पिन टू स्टार्ट। जैसे ही आप पिन टू स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, देखो आपकी यहाँ पे टाइल आ जाएगी। अब इन टाइल का हम साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। राइट क्लिक ऑन रीसाइज ऑप्शन, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है स्मॉल, मीडियम, वाइड, लार्ज। तो जैसा भी आप चाहते हैं आप अकॉर्डिंगली क्लिक कर सकते हैं, ओके। स्मॉल पे करेंगे तो देखो ये आपका स्मॉल साइज़ हो गया। सो अकॉर्डिंगली यू कैन रीसाइज द टाइल्स। नाउ शटिंग डाउन योर कंप्यूटर। शट डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, यू हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, then you have to click on this power button and you will get the option of shut down here। और आपको शट डाउन ऑप्शन पे क्लिक करना है जिससे आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, ओके। नाउ कम टू द माउस पॉइंटर शेप्स। सो दीज आर द शेप्स ऑफ योर माउस पॉइंटर। जब हमारा माउस पॉइंटर ऐसे रोटेट करता रहता है इन सर्कल शेप, इट मीन्स कि कंप्यूटर इज़ बिज़ी एंड कंप्यूटर चाहता है कि हम वेट करें, ओके। देन डबल हेडेड एरो। जब आपके हमारे दोनों तरफ इस तरह से एरो आ जाते हैं, वी कॉल इट डबल हेडेड एरो। सो इट इज़ यूज फॉर रीसाइजिंग द विंडो और पिक्चर। इससे हम किसी भी पिक्चर को रीसाइज कर सकते हैं या किसी भी विंडो को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। आई बीम, ये जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वर्ड पैड में, नोट पैड में कुछ टाइप करते हैं तो ये आपका इंसर्शन पॉइंट आता है जहाँ से हम टेक्स्ट टाइप करना स्टार्ट करते हैं। सो इसे हम बोलते हैं आई बीम। दिस इज़ द नॉर्मल पॉइंटर। ये नॉर्मल पॉइंटर होता है जिससे हम पॉइंट करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, ड्रैग करने के लिए यूज़ करते हैं। देन वी हैव फोर हेडेड एरो। फोर हेडेड एरो को हम यूज़ करते हैं फॉर मूविंग एनी पिक्चर और एनी टूल बार। देन वर्किंग इन बैकग्राउंड। नॉर्मल पॉइंटर के साथ ऊपर में जब आपका ये सर्कल की तरह रोटेट करता है, इट मीन्स कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर रहा है वाइल वी आर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, ओके। सो दिस इज़ योर चैप्टर ऑल अबाउट। वंस गो थ्रू द चैप्टर एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, you can ask in the live session, okay. So today just read the chapter, clear your concepts, and if you have any doubt I am here to help you. And in the next class we'll start the exercise of this. The book exercise we have already done, so we'll start with the question answers, that is short question answers. After that we will do the long question answers, okay. So till then take care, bye.